Okay. So first let's celebrate the birthday of Angel. Please sing along for her like we do in the normal classes. 3, 2, 1, begin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Angel. Happy birthday to you. God bless Happy you, birthday. Angel. Have fun. Although we are not there Happy birthday, physically, Angel. but we are all there in spirit with you. Happy birthday, Angel. Happy birthday, Angel. Thank you. हम सबकी चॉकलेट अपना हमारे नाम की लिख के रखना. हमारा जब भी स्कूल खुलेगा we will take everything from you because we sang for you. Okay? Okay, ma'am. Good. अच्छा. चलो. Since it's Angel's birthday, she will start today's exercise. Please, everybody else, mute your mic. Angel, tell me how were your summer vacations? Did you do something nice, something cool? Yes, ma'am. बताओ थोड़ा सा. मैम मैंने 5th चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा था चलो. ज्योग्राफी का. That's very good. मस्ती करी या नहीं? मैम करी थी. Good work. वो ज्यादा जरूरी है. Okay, next. Arush, how were your summer vacations? मैम वेरी कूल. Did you do something nice? Learn something new? यस मैम. Please tell us. मैम मैंने तो बहुत सारी मस्ती की थी और हम दिन भर रात में बहुत देर तक जागते रहते हैं और टीवी देखते हैं और मैंने कुछ साल पढ़ाई भी कर ली है. आईएमओ की पढ़ाई भी मैंने कर ली और फिफ्थ जो चैप्टर है वो भी मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है. Very good. Very good. You made your vacations productive. Akshat, how were your vacation? Ma'am, my vacation is good. Ma'am, I watch mostly TV and do do study at least 1 hour, and I learn new that is drawing. अरे वाह, शाबाश, very good. Akhil, how were your vacation? Yes, Akhil, can you unmute your mic? Just tap on your face on the screen and there will be 2 options. Yes. How were your vacation? ये बताओ ना, I can't hear you. Is your mic not working? Yes, ma'am. It's working. Tell me, how were your vacation? Did you do something nice? Yes, ma'am. बताओ ना मुझे. मैम मैंने वेकेशन में बहुत मस्ती की, पढ़ाई भी की, सब कुछ किया मैंने. कुछ नया सीखा? यस मैम. बताओ ना, क्या सीखा? मैम स्टडी. स्टडी करना सीखा. That's very nice. Good for you. Good for all of us. Yes, Gaurik, how were your vacation? Ma'am, my vacation is very cool. Did you do something nice? I see you got a very cool haircut. Summer haircut. Good work. Low Yes, maintenance. ma'am. Low maintenance and cool head. मैम बहुत धमाल किया, बहुत मस्ती की और मैम नया सीखा, क्रिकेट खेलना, स्टडी करना और पिट्ठू खेलना. पिट्ठू खेलना सीख लिया. शाबाश. पिट्ठू खेलना बहुत जरूरी है, सबको आना चाहिए. देवांश, how were your vacation? यस मैम. मैम अच्छा था. कुछ नया किया? मैम रोज सुबह टहलने जाना पड़ता है अब तो. ओहो, कितनी मुश्किल है, टहलने जाना पड़ता है. और कुछ कहाँ कर रहे हो बेटा? फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी तो करनी चाहिए. इट्स गुड फॉर यू. नहीं तो आपके हाथ पैरों में जंग लग जाएंगे ना. मैम करना पड़ता है. गुड, करना चाहिए. उसको पड़ता है कि नहीं, एक अच्छे माइंडसेट से करना शुरू करो. यस हिमांशु. पढ़ाई. Yes, sorry, Yes, I ma'am. cut you back.
एक मिनट हिमांशु, आई विल गेट बैक टू यू। मैंने देवांश को बीच में Okay, रोक ma'am. दिया। हाँ देवांश, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। मैम मैंने बहुत सारी टीवी देखी, पढ़ाई भी करी, सब कुछ करा मैंने तो, और लूडो खेला दिन भर। लूडो खेला, मैंने भी बहुत लूडो खेला। इट वॉज फन। गुड। यस हिमांशु, हाउ आर योर वेकेशन? मैम बहुत अच्छे गए। कुछ बढ़िया किया, शानदार किया? यस मैम, पढ़ाई तो मैम 2 आवर्स करता ही हूँ, और मैम मैम रोज प्रैक्टिस करता था क्रिकेट की, और घर क्या पे। क्या करते हो क्रिकेट में? बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो? मैम ऑलराउंडर। अरे शाबाश, वेरी गुड। देवांशी, हाउ आर योर वेकेशन? देवांशी बेटा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, टॉक टू मी। Devanshi, beta, can you unmute yourself? If you cannot, please write something in the chat box. अगर कोई problem आ रही है तो if I can help you, I'll try to. Bhavya, can you hear me? Bhavya, you cannot unmute yourself or you cannot hear me. You'll have to let me know. बेटा कहीं तो आपको ना बीच में रिस्पॉन्स देना पड़े। I heard a little sound from your side, beta, but it was not clear. Bhavya, यस मैम। कैसे रहे तुम्हारी छुट्टी? मैम बहुत अच्छा। क्या मजे करे, थोड़ा सा हमें भी बताओ। मैम मैं मामा के घर तो जा नहीं पाया, मामा के घर में बहुत एंजॉय करता, लेकिन मैम यहाँ पर भी बहुत अच्छा किया। यहाँ पर मैम क्रिकेट अच्छे से खेलते हैं हम थोड़ी पढ़ाई भी की। अरे वेरी गुड। आतिशय, वेलकम, हाउ आर यू, हाउ वर योर वेकेशन? मैम गुड। गुड। अरे इतना इतना हल्का जवाब, इतना हल्का पतला जवाब कौन देता है? नहीं, डिटेल में चाहिए मेरे को आंसर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्या किया, कुछ अच्छा किया, कैसे मजे करे, हमें बताओ ना। वी ऑल वांट टू नो। मैम बहुत मजा किया मैम, अतिशय अतिशय। थोड़ा डिटेल में बताओ ना, मजा तो बहुत किया, थोड़ा मुझे मुझे भी तो डिटेल चाहिए। स्कूल में जब वेकेशन के बाद वापस आते हो तो बड़ा एक्साइटेडली एक दूसरे को नहीं बताते कि मैंने तो ये करा, मैंने तो वो करा, वैसे बताओ ना, हम सब सुन रहे हैं। मैम तब सबके साथ खेलने का मौका मिलता है, अब तो मैम घर में ही बड़े रहते हैं, अब क्या करें। कोई बात नहीं यार, टीवी। कोई बात बहन नहीं होता तो फिर मैम मैं अभी नानी के घर पर ही हूँ। ये मैम अक्षर बस तुम्हारे मजे टीवी। हैं। मैम मैं नानी के घर पे नहीं जा पाया। मैं भी नानी के घर पे मैम नहीं मैं जा तो पाई। सुबह मैम मैं भी नहीं जा जाता हूँ, पाया। फिर एक्सरसाइज मैम भी मैं भी करता नहीं जा पाई अपने नानी के घर। मैम मेरी मौसी की हूँ। मैं भी कोई बात समर नहीं, नानी को वेकेशन में कहीं घूमने ही नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम सब लोग अपनी नानी को आज वीडियो कॉल कर लेंगे। मैम गुड अच्छा आइडिया। क्या? मैम वीडियो कॉल करने की कोई जरूरत यस, नहीं है, मैम मैं नानी के घर पर ही हूँ। तुम तो लकी हो, हम लोग नहीं है ना उतने लकी, हमें अपनी नानी को वीडियो कॉल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दिस इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े टाइम बाद सब कुछ जब नॉर्मल हो जाएगा, ऑल ऑफ यू विल गेट टू विजिट ऑल योर रिस्पेक्टिव नानी एंड यू कैन हैव ऑल द फन देयर। इन द मीन टाइम, अब जैसे हम अपना टाइम अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ नया नया सीखेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू सोशल साइंस फ्रॉम नाउ ऑन। अब जो देखो, ज्योग्राफी तो हमने बहुत पढ़ लिया। आरुष प्लीज कैन यू म्यूट योर माइक, बीच में ना डिस्टर्बेंस होने लग जाता है। आरुष प्लीज म्यूट योर माइक। Just give me 1 second, please. I'll record your attendance here. There seems to be an issue. I'll need a minute, please.
जब हम लोग गूगल मीट में चल रहे हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना कि गलती से बैक ना हो जाए। बैक हो जाता है ना तो यू लीव द मीटिंग, फिर तुम्हें वापस से एंट्री करनी पड़ेगी और बीच में हो सकता है कि बात अधूरी रह जाए। यस मैम। मैम मेरे से भी बैक बटन ही दब गया था। कोई बात नहीं बेटा, मेरे साथ भी हो जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो मेरे साथ जो गड़बड़ होती है ना, इसी के लिए मैं बता रही हूँ। मोबाइल पे क्या है, बहुत इजीली बैक हो जाता है। लैपटॉप में थोड़ा मुश्किल है, फिर मोबाइल में बहुत इजीली बैक हो जाता है। और अगर पॉसिबल हो और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो कोशिश करना कि आप इस पे चलाओ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैम मैं तो कंप्यूटर पर चला दूँ। कंप्यूटर में क्या फायदा होता है कि ना, थोड़ा सा एक तो बड़ा स्क्रीन रहता है, आपकी आंखों पर स्ट्रेन कम आएगा। पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, इशू नहीं है। अगर अवेलेबल है, अगर आप इजीली यूज कर सकते हो तो कर लिया करो। यस। सो ज्योग्राफी तो हमने बहुत पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री। आज तो हम कुछ खास नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों की जब नेक्स्ट क्लास लगेगी तब हम बिल्कुल बुक खोल के चैप्टर चालू कर देंगे। तो व्हाट यू विल डू इन द मीन टाइम, अब देखो हफ्ते में हमारी केवल 2 क्लास लगेगी, हमारे पास जब कोई बहुत ज्यादा काम करने को है नहीं, तो हम क्या करेंगे, रोज के 2 पेजेस यू विल रीड 2 पेजेस डेली फॉर मी। मेरे लिए बस 2 पेज। हिस्ट्री की बुक नहीं है बेटा एंजल, आपके पास हिस्ट्री की बुक नहीं है? आप मुझे आपके जो मम्मी का नंबर है उससे अभी मैसेज कर देना क्लास के बाद, मैं आपको बुक की डिजिटल कॉपी भेज दूंगी। ओके, मैं आपको आने वाले 3-4 चैप्टर जो डिजिटली होते हैं मैं भेज दूंगी। और अगर आपको इजीली हो तो मैं आपको पूरा लिंक भेज दूंगी जिससे आप सारे बुक्स डाउनलोड कर सकती हो। तनुश्री में। ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। किसी को भी कुछ आइडिया है हिस्ट्री क्या होता है? मैम अवर पास। मैम वो मैम दुनिया का पास जो रहता है। मैम इतिहास। मैम एक इतिहास। मैम इट इज अवर पास। देखो, जिन्होंने इतिहास बोला है ना, जिन्होंने इतिहास बोला है एक मिनट बेटा, ऐसे एक साथ नहीं बोलना है, एक साथ नहीं बोलना है। इफ यू वांट टू स्पीक, आप चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, दैट इज ऑल। आप जैसे यस लिखेंगे मुझे यहाँ पर दिखने लग जाएगा तो मैं आपको बोलूंगी, वरना आप लोग सब एक साथ अनम्यूट करके बोलने लग जाओगे तो ना मैं आपकी बात समझ पाऊंगी ना आप क्लियरली बोल पाओगे, है ना? इफ यू वांट टू स्पीक जस्ट राइट वाई इन द चैट बॉक्स एंड आई विल आस्क यू टू अनम्यूट योर माइक। तो ठीक है, जितने लोगों ने मुझे बताया कि इतिहास होता है, दे विल गेट फुल मार्क्स इन ट्रांसलेशन, फुल मार्क्स इन ट्रांसलेशन। बट हम लोग ट्रांसलेशन थोड़ी कर रहे हैं, इंग्लिश टू हिंदी बता दिया मुझे। हिस्ट्री क्या है, इतिहास। हाँ, किसने बोला था? किसी ने अक्षर ना 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 ना, ना। रूल नहीं ब्रेक करना, जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स वाई। यस देवांश बोलो। मैम वो आ नहीं रहा, मैम साइड नहीं हो रहा। क्या वो साइड में आता है चैट बॉक्स? अभी आएगा, आएगा। उसको ना एक बार क्लिक करोगे तो वो साइड से खुल के आ जाएगा। एक सेकेंड, देवांश बताओ व्हाट इज हिस्ट्री? मैम जो हमारे पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं और वो अगर अच्छी हैं तो उसे इतिहास कहा जाता है, अच्छी या अच्छा बुरी हैं। ठीक है, आरुष बताओ। मैम हिस्ट्री थ्री टाइप्स की होती है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में वो होता है जब आदि मानव हुआ करते थे। और जब मेडिवल हिस्ट्री होती है जब ये जैसे कि बाबर आया था और महाराणा प्रताप की डेथ थी और ये सब और भी कई सारी चीजें होती हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है जब अंग्रेज आए थे, महात्मा गांधी के बारे में उसमें पढ़ने को मिलता है। ये सब है हिस्ट्री। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो मेरे से भी बहुत ज्यादा जानते हो। वेरी गुड। हिमांशु बोलो। मैम हिस्ट्री मीन्स मैम जो अपना पास्ट था मैम, उसमें जो अपने हमारे पूर्वज थे मैम वो कैसे बड़े हुए मैम, उन्हें कैसे घर बनाते थे, वो कैसे सब कुछ करते थे।
ओके चलो ठीक है, ऑल ऑफ यू आर पार्शली करेक्ट। एक मैं आपको बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देती हूँ, द स्टोरी ऑफ पास्ट इज हिस्ट्री। द स्टोरी ऑफ पास्ट इज हिस्ट्री, तो अगर आप टेक्निकली देखें तो जो कल हुआ वो भी आपकी हिस्ट्री है कि नहीं? वो भी तो पास्ट हो गया, जो भी पास्ट हो गया वो आपकी हिस्ट्री हो जाता है। सो बट व्हेन वी आर स्टडिंग हिस्ट्री डेफिनेटली इन स्कूल, जैसा कि आरुष ने बोला कि हिस्ट्री को हमने अपने एडवांटेज के लिए, या फिर आतिश प्लीज अपना ये माइक म्यूट रखो, बहुत डिस्टरबेंस आता है पीछे से। तो देखो, जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जो उसकी स्टोरी है दैट बिकम्स हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या हुआ कि हमने अपनी सहूलियत के लिए या अपने एडवांटेज के लिए हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 3 पार्ट्स क्या थे कि इनडेफिनिट पास्ट से लेके अप टू द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। अब ये क्या बिल्कुल ऐसे एयर टाइट नहीं है कि एक दिन मैंने डिसाइड किया कि बस ठीक है आज ना एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया, अब कल से मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, ये ऐसा नहीं था। बट एक छोटा सा टाइम पीरियड था जिसमें क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई, सम डिफरेंट थिंग्स हैपेंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी स्टार्टेड कैरेक्टराइजिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एज एंशिएंट, medieval or modern. So ancient history ends mostly with what we have to read this year. We will read ancient history this year from indefinite past up to the period of Harshvardhan. And medieval history, it starts with the emergence of small empires, and mostly it focuses on the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. And after that comes modern history, which starts with the coming of foreigners in this country, and then up till we got independence or we got some kind of political power of our own. This is mostly what we read in our schools. So this year we will cover ancient history, the time from indefinite past, मतलब जब से हमें थोड़ा बहुत भी पता है कि human beings कैसे रह रहे थे, वहां से हमारा time period शुरू होगा। The first chapter mostly focuses on the way people used to live. अब देखो, हम लोग ना बहुत ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग बैक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इमेजिन करनी पड़ेंगी। अब कैसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कैसे लोग रहते थे, आदि मानव, जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा, आप लोगों ने कहा। अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी विच could have been the most important invention in the ancient period? The most important invention. Ma'am, the invention of wheel. Invention of wheel was important. Okay, what should have been the most important? थोड़ा और सोचो। Invention of fire. Invention of fire। और आरुष अगली बार से पहले चैट बॉक्स में लिखना, गलत आदत मत डालो, ठीक है? Yes, the invention of fire. Because of fire we learned few important things. The first thing we learned was that how to keep ourselves warm. Another, by the use of fire we started to cook our food. This changed our diet a lot. But when we are talking about the early stages of human being, what used to happen, that we were hunter and gatherer. We used to hunt animals, we used to gather fruits. बस हम इतना ही करते थे। हमारे पास कोई खेत नहीं था, हमारे पास कोई गेहूं नहीं था, कोई चावल नहीं था, हम सिर्फ पेड़ों पे से फ्रूट तोड़ते थे और जो भी वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे उन्हें मार के फिर जब हमारे पास फायर आ गई तो उसे पका के खा लिया करते थे। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड लिविंग देयर लाइफ। अब हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, एक पूरी हिस्ट्री की स्टोरी पढ़ रहे हैं। अब स्टोरी में कहीं से तो शुरुआत होती है, तो ह्यूमन बीइंग्स की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से। when they started doing this hunting and gathering, अब हमने क्या करा, हम एक पूरी स्टोरी को ट्रेस कर रहे हैं। जैसे कि आप समझ लो कि आज हमारी लाइफ कैसी है, अब हम ना बैकवर्ड अगर जाते जा रहे हैं तो हम लोगों को एक पॉइंट मिलेगा जहां से हम स्टडी करना शुरू करेंगे, और वो पॉइंट हमें कैसे मिला, तो उसमें सबसे काम की चीज क्या होती है, सोर्सेस। अब हमें ये कैसे पता है कि भाई पुराना टाइम पे जो लोग थे वो लोग फ्रूट खाते थे और जानवर मारते थे, बिकॉज वी हैव सम सोर्सेस। और क्या होते हैं, एविडेंस मतलब क्या, प्रूफ, कि हमने इस चीज के बेसिस
पर बताया कि हाँ ऐसा था। हम जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, नाउ दैट वी आर ऑल हिस्टोरियंस, तो हिस्टोरियंस को कुछ चीजों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। पहली चीज डेट, अगर आप एग्जैक्ट डेट पे नहीं जा सकते कोई बात नहीं, बट वी नीड टू नो कि हम कौन से टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिस्टोरियन को डेट या ध्यान रखनी पड़ती है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से इमेजिन करना पड़ता है। दूसरा, वी नीड सोर्सेस। अब जो सोर्सेस हैं उसके बेसिस पर हम कैसे बोल सकते हैं कि उस टाइम पर क्या था। हम पूरे साल जो भी पढ़ेंगे इट विल बी बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स कि भाई सोर्सेस क्या थे। अब देखो फायर इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू थिंक फायर के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट होता है रहने के लिए? आप सोचो, आपके पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास खेत भी नहीं है, आपके पास चॉकलेट्स भी नहीं है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या लगेगी रहने के लिए? शेल्टर। शेल्टर। शेल्टर इज इंपॉर्टेंट, गुड। एंड फायर। फायर तो चलो हमें बनाना आ गई, ओके। मैम वाटर। फूड। Water, 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 water. Water is the answer that I was searching for. See, shelter was what? Shelter was natural. अब कोई भी कहीं भी रहेगा तो उसको किसी तरीके की एक छत चाहिए टू कवर देमसेल्व्स, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट। शेल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप क्लोथ्स की बात कर रहे हो आरुष, क्लोथ्स इज गुड, बट क्लोथ्स का क्या था उस टाइम पर? दे यूज्ड टू वेयर लीव्स और एनिमल स्किन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट टाइम वाज द सोर्स ऑफ वाटर। भाई आपको बहुत अच्छी मिल गई लेकिन वहां 5 किलोमीटर तक पानी नहीं है, तो फिर आप वो केव छोड़ के चले जाओगे ना, तो नहीं तो आपको रोज 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा पानी के लिए। So we used to find a place which was a mix of all these things, जहां पर पानी भी पास में हो, जहां पर शेल्टर भी ढंग का हो, और जहां पर आपके फूड के सोर्सेज भी इजीली अवेलेबल हो। ये सारी चीजों का ध्यान रखते थे। पर अब क्या हुआ कि भाई देखो एक पानी का सोर्स है, सपोज एक कोई छोटी सी रिवर है, तो दैट रिवर कैन फीड अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल कैन यूज द वाटर। तो जब हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी पुरानी सिटीज बनी, सारी सिटीज ऐसी जगह पर बनी जहां पर पानी का सोर्स इजीली अवेलेबल था। सो मोस्ट ऑफ द बिगर सिटीज दैट वी नो ऑफ इन हिस्ट्री, दे वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। नदी के किनारे पर बड़ी बड़ी सिटीज और बड़े बड़े सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश हुए हैं। कैन एनीबडी नेम मी सम सिटीज, सम ओल्ड सिटीज व्हिच आर नियर द बैंक्स ऑफ रिवर? मैम अयोध्या। अयोध्या, गुड, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू। और मैम हरिद्वार। हरिद्वार ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। और मैम आगरा। आगरा मैम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ओमकारेश्वर। यमुना। ओमकारेश्वर तो बेटा एक एग्जैक्टली कोई बहुत बड़ा सेंटर नहीं है, बट यस इट इज अ सिटी व्हिच इज सिचुएटेड नियर नर्मदा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट्स अ वेरी गुड आंसर, इट वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर इंडस। अब देखो इंडिया का नाम कैसे पड़ा? इंडिया का नाम ना देखो ऐसे पड़ा कि इंडस जो था उसके जब रिकॉर्ड्स हम देखते हैं तो जो दूसरी सिविलाइजेशन थी उधर ग्रीस वगैरह में, तो वो इस जगह को कहते थे सिंधु, सिंधु रिवर। सिंधु रिवर जो एरिया था, फिर वहां पर रहने वाला एरिया बन गया सिंध। सिंध में रहने वाले लोगों का नाम पड़ गया सिंधी। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, दे विल टॉक इनटू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। So here what Sindh come from? सिंध से हिंद बन गया, हिंद से चेंज होके हिंदुस्तान बन गया, और हिंदुस्तान फिर टाइम के साथ चेंज होके इंडिया बन गया। सो दिस इज हाउ नेम्स आर गिवन। धीरे धीरे टाइम के साथ जो है चीजों के नाम बदलते चले जाते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट रिवर किसी को याद आ रही हो तो, जिसके पास में कोई मैम इम्पोर्टेंट? गोकुल। मैम गोकुल। मैम यमुना गोकुल, नदी के पास। यस गोकुल। और अच्छा पटना पता है? पाटलिपुत्र। यस मैम। पटना was very Yes, ma'am. important in ancient history, क्योंकि पाटलिपुत्र में when we will talk about, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो थोड़ी सी मैं आपको बात बता देती हूँ। पाटलिपुत्र जगह थी जहां पर मगध एम्पायर रोज, द एम्पायर ऑफ मगध। हुआंग हो सिविलाइजेशन चाइना, अरे क्या बात है, तुम तो इंटरनेशनल हो गए, बढ़िया। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो पाटलिपुत्र था वहां पर मगध डिनेस्टी, मगध एम्पायर हुआ। वहां पर कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे? कोई नाम बता सकता है मुझे?
मगध के एनी इंपॉर्टेंट रूलर्स? मैम अशोका। अरे वाह देवांश, बढ़िया। धनानंद, ओके, यस, गुड। अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, धनानंद, these were the most prominent rulers of ancient India, and especially Ashoka. Anybody knows the story of Ashoka? शॉर्ट में। चलो कोई बात नहीं, आई टेल यू द स्टोरी ऑफ अशोका समडे। जिस दिन हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा हम लोग अशोका को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है बेटा, अब हम लोगों की क्लास क्योंकि वीक में केवल 2 दिन लगेगी, तो मुझे आप लोगों से बहुत सिंसियरिटी की एक्सपेक्टेशन है। सिंसियरिटी क्या है कि आप रीड करें, क्योंकि आप रीड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम निकल के आएगी। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम थोड़ी सी इंग्लिश में भी होती है कि हम समझ नहीं पाते कि उसमें लिखा क्या है। आपको इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन हो सकता है कभी इंग्लिश समझ में ना आए। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टडी। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, लेकिन उसके लिए क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज आई कैन इन द क्लासेस, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पर्सनली अगर किसी को समझ नहीं आई तो आपको पूछना पड़ेगा। पूछने के लिए पढ़ना पड़ता है, सबसे जरूरी चीज वही है। सो चैप्टर 1 कोशिश करना जितना पढ़ सकें आप। तो जब हम नेक्स्ट क्लास लगाएंगे तो हम चैप्टर 1 के ऊपर अच्छा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम लोगों का चैप्टर का पोर्शन होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर शुरू के 3 पेज कवर हो गए तो हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप 3 पेजेस पढ़ के उसके पीछे जो भी क्वेश्चन है जिसके आंसर उन 3 पेजेस में है उसको भी आप आइडेंटिफाई कर पाए। हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल बिगिन हिस्ट्री दिस वे। इज इट ओके विद एवरीवन? मैम हिस्ट्री की यस मैम, यस मैम। यस आरुष बोलो। मैम जो आरुष Okay, बेटा मैम। 1 मिनट आरुष को बोलने दो। हाँ आरुष, आरुष बेटा आवाज की कट नई रही है कॉपी आपकी। बनानी है। हाँ बेटा, अगर आप नई कॉपी बना सकते हैं, अगर आपके पास कॉपी है तो आप नई कॉपी बना लीजिए, क्योंकि अगर चैप्टर्स इधर उधर मिक्स हो जाते हैं ना तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चैप्टर कौन सा है। ज्यादा Okay, मोटी मैम। नहीं बनाना है, 125 पेजेस मैक्सिमम, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। दोनों साइड पे लिखने वाली कॉपी होना है, ठीक है? मैम, ये सेक्शन मैम ये हमारी अर्थ बनी है, मैम ये जियोग्राफी में आ गई है, हिस्ट्री में? बेटा अर्थ विल कम इन ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, भूगोल, भूमि गोल है। So when we are talking about geography, we are talking mostly about the physical features that are present on Earth, our country, or these kind of places. Okay, मैम। जब हम स्टोरी की बात करते हैं, द स्टोरी ऑफ पास्ट, इट इज हिस्ट्री। जब हम आसपास की सराउंडिंग्स की बात करते हैं, इट इज ज्योग्राफी। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नेंस या हाउ टू गवर्न या हाउ टू लिव, देन इट बिकम्स सोशल पॉलिटिकल लाइफ, SPL, जो हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, चलो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी का हम सेशन फिर क्लोज करते हैं। बेटा आप बनानी है। क्या, आरुष एक बार रिपीट करो प्लीज, आपकी आवाज कट रही है। ज्योग्राफी की दोनों साइड पे लिखने वाली कॉपी बनानी। हाँ हाँ, दोनों साइड पे लिखने वाली कॉपी बनाओ। किसके यहाँ से आवाज आ रही है इतनी जोर से? मैम गौरेक। गौरेक, थोड़ा ध्यान रखो बेटा। तीनों कॉपियां दोनों साइड की ही बनाओ, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और हम लोगों के पास हो सकता है कॉपीज की अवेलेबिलिटी कम हो। सो इट्स इजियर, अगर हमें कुछ भी ड्रॉ करना होगा मैं आपको एक अलग तरीके से कैसे करना है वो मैं बता दूंगी। डोंट वरी अबाउट इट। मैम मैंने ज्योग्राफी की एक पेज ब्लैंक वाली कॉपी बना ली। मैम मैंने भी बनाई ब्लैंक बेटा? वाली बनाई है। मैंने बार बार बोला था ना। मैम मैंने पहले ही बना ली थी। अरे मेरे पढ़ाने से पहले तुमने कॉपी कैसे बना ली है? चलो कोई बात नहीं, अब बना ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ा ना मेरी बात सुना करो, मैं किसी लॉजिक से बोलती हूँ। पर चलो कोई बात नहीं, बना ली तो ठीक है, चलेगा। जिन्होंने नहीं बनाई है वो थोड़ा सा समझदारी से काम ले। अच्छा, और बेटा कोई बात हो तो बात कर लो मुझसे, नहीं तो फिर हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। चलो ठीक है, then that will be all for today. Sai Ram, have a nice day and please start leaving the session one by one.
सायरा मैम, थैंक यू मैम। सायरा सायरा मैम, मैम। thank you, सायरा बेटा। सायरा मैम। सायरा।